धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। बहुत दिन से प्रयासरत था मैं, आपने मौका दिया, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि टीकाकरण और पशुओं के डेटा से संबंधित को डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की कार्रवाई सरकार ने की है और ऐसे में कई जिलों के अंदर वैक्सीन और स्टाफ की कमी के कारण क्या टीकाकरण प्रभावित हुआ है। ऐसे में सरकार ने ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाया है और राजस्थान जैसे राज्यों में टीकाकरण को लेकर के ऐसा कई ऐसे वाकये सामने आए हैं कि टीकाकरण जो है वास्तविक रूप से न किया जाकर के सिर्फ कागजों में उसकी इतिश्री की जा रही है। उससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। Mr. Chairperson, sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of this House, I rise to oppose the introduction of the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 on multiple grounds enunciated hereunder. First, the bill suffers from excessive delegation of essential legislative functions. Core aspects such as the manner of vesting, management, disposal of assets, timelines, exemptions, and even appellate structures are left to be prescribed by the central government through rules. This effectively reduces Parliament to enacting a skeletal framework contrary to the settled constitutional principles that essential legislative policy must be determined by the legislature itself. Second, the bill enables wide and unguided executive control over property, including provisional and permanent vesting of assets in a designated authority with powers of management, transfer and disposal. This raises serious concerns under Article 300A of the Constitution of India, as deprivation of property must be fair and accompanied by adequate safeguards, none of which are meaningfully embedded in the statute. Third, the bill concentrates adjudicatory, executive and quasi-judicial powers in the same authority with limited and conditional avenues of appeal. This undermines the principles of natural justice and separation of powers, risking arbitrary decision-making. Fourth and final, the provisions enabling takeover, management and disposal of assets, even where partly funded by non-foreign sources, are manifestly disproportionate and may have a chilling effect on legitimate civil society activity, thereby undermining the constitutional guarantee under Article 19(1)(c) of the Constitution of India, which is a fundamental freedom and a fundamental right. In sum, the bill perpetuates sweeping, unguided and disproportionate powers in the executive without adequate safeguards or legislative clarity. It is therefore constitutionally suspect and ought not to be introduced in this House in its present form, and therefore I oppose the introduction of this bill. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं भारत की डिजिटल संप्रभुता पर खतरे को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारी डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए भारत को एक स्वदेशी सर्च इंजन विकसित करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त हो सकें। 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर चीन, रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, चेक रिपब्लिक और यहां तक कि वियतनाम का भी अपना स्वदेशी सर्च इंजन है। इन देशों ने इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। ये सर्च इंजन अक्सर अपने देश में गूगल से अधिक लोकप्रिय होते हैं और भारत और बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं। इन देशों ने अपनी डिजिटल संप्रभुता और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी इंडिजिनस सर्च इंजन को विकसित कर अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। यह सर्च इंजन देश की बाजार हिस्सेदारी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करता है। भले ही हाल के कुछ वर्षों में कुछ चुनौतियां जरूर आई हों, परंतु इन देशों ने विदेशी दबाव से बचने के लिए स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया है, जो आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं। भारत में स्थिति चिंताजनक है। हमारी 140 करोड़ आबादी का अधिकांश डेटा विदेशी सर्च इंजनों के माध्यम से संग्रहित और विश्लेषित होता है, जो गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए खतरा पैदा करता है। जिस तरह हॉर्मुज एक चौक पॉइंट है, वैसे ही आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हमारे डिजिटल चौक पॉइंट बन चुके हैं। 2026 की हॉर्मुज किल्लत
हमें चेतावनी दे रही है। अगर हम अभी स्वदेशी सर्च इंजन, क्लाउड और सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे तो कोई भी भविष्य का भू राजनीतिक दबाव, यूएस एंड इंडिया ट्रेड वॉर या सैंक्शन हमें डिजिटल किल्लत में डाल सकता है। अमेरिका के क्लाउड के तहत गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को यूएस सरकार आदेश दे सकती है कि भारतीय डेटा सरकार को दे या इनकी सर्विस बंद कर दें। भविष्य में यदि भारत यूएस टेंशन बढ़े तो गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल, एंड्रॉइड अपडेट्स आदि बंद हो सकते हैं। इस प्रकार चाइना और इंडिया विवाद बढ़ने पर माइक्रोसॉफ्ट अजूर, जो कई सरकारी बैंक, रेलवे इस्तेमाल करते हैं, वो प्रतिबंधित हो सकते हैं। 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने ईयू सैंक्शन की वजह से एक भारतीय रिफाइनरी नायरा की पूरी क्लाउड सेवाएं बंद कर दी थीं, जिसके लिए अदालत में लड़ना पड़ा। सरकार ने इसे वेकअप कॉल माना था। अतः सभापति महोदय, मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि तत्काल पहल कर आईटी मंत्रालय के माध्यम से इंडियन सर्च इंजन डेवलपमेंट चैलेंज शुरू करें, जिसमें स्टार्टअप्स, आईआईटी और आईआईएम को प्रोत्साहित किया जाए। डेटा लोकलाइजेशन हेतु सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं में स्वदेशी सर्च इंजन अनिवार्य करें। यह कदम न केवल डिजिटल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा, बल्कि लाखों नौकरियां पैदा करेगा और हमारी सॉफ्ट पावर को मजबूत करेगा। अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से इस पर श्वेत पत्र जारी करने और कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। हिंदुस्तान में हुए बेहिसाब उत्खनन से जो धरती माता को नुकसान हो रहा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए, ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? मंत्री महोदय, सादा क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं, मैंने पॉलिटिकल प्रश्न पूछा है, बिल्कुल गलत है। जिस तरह से जनरेशन और आपको मालूम है कि जनरेट होता है और ट्रांसमिशन होता है, इसके बीच में असंतुलन है। और जब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ दूसरा आपके माध्यम से, कि जो सोलार मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का संकट आ गया है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे जो सोलार सेक्टर में बड़े पैमाने पे जो है विदेश निर्भरता पे हमारा सेक्टर टिका हुआ है। तो इसमें जो है, जो ग्लोबल ट्रेड इश्यूज है, जैसे यूएस द्वारा लगाए गए ड्यूटीज है, ने हमारे मैन्युफैक्चर को और भी कमजोर कर दिया है। तो मेरा सीधा सवाल उनसे दूसरा है कि क्या सरकार के पास ये आंकड़ा है कि इससे हमारे महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है? और दूसरा मेरा उनसे यह कहना है कि मुंबई के इंडस्ट्री को, क्लस्टर को जो है विशेष राहत देने के लिए कुछ इंसेंटिव का पैकेज आपने सोचा है, तो उसको क्या हमको इंसेंटिव मिलने वाला है? मुझे, क्योंकि हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिला है।